Hello students, welcome to my channel. In today's class we are going to discuss surface area and volume, and in this video we'll be talking about the formulas and we'll try to remember the formula by some tricks. Let's start the first formula, that is volume. Volume of, we are talking about a cuboid. What is a cuboid? Diagram is there, right? We have length, breadth and height, right? So here when we talk about volume of cuboid can be remembered by volume of area of base into height. Now what is area of base? Base is a rectangle, length and breadth. So base का area क्या होगा? L into B. And what is height? Height is h. So we can say LBH square unit. Sorry, cubic unit. Next thing is total surface area. When I talk about the total surface area of a room, of a cuboid, always think about a room. In room, every room is like cube or cuboid. Generally, I am also in a room that is of cuboid shape. Now, if we talk about a room, then how many surfaces are there? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So we have to calculate the area of all 6 and we'll be adding. Now also remember one thing or observe one thing कि जो opposite surfaces है उनका area same होता है. भाई left का right का area same, front का back का same, top and bottom का area same. तो मुझे सिर्फ एक निकालना है और 2 का calculate करना है. ध्यान से देखना. The area of base is LB, तो top का area भी LB होगा. So LB कितना हो जाएगा हमारे पास? We'll have 2LB plus the left hand side. बेस है और हाइट है, रेक्टेंगल है ना आपके पास, बेस एंड हाइट, तो BH और अपोजिट भी BH, 2BH प्लस थर्ड कौन सा बचा? बैक एंड फ्रंट. तो फ्रंट की बात करेंगे तो L है और हाइट है, L है और हाइट है, HL और HL कितना हो जाएगा? 2HL. तो 2 कॉमन लेंगे, LB प्लस BH प्लस HL, दैट इज स्क्वायर यूनिट. नाउ नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ डायगोनल. भाई डायगोनल की बात करेंगे तो क्यूबॉइड का डायगोनल होगा √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? कई बार क्यूबॉइड में क्वेश्चन आता है व्हाट कैन बी द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी पुट इन द क्यूबॉइड. तो लॉन्गेस्ट रॉड या लॉन्गेस्ट लेंथ की कोई लेंथ है वो रखी जा सकती है, तो दैट कैन बी ओनली डायगोनल. तो द लास्ट थिंग, एरियाज ऑफ 4 वॉल्स या फिर बोल सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया. तो 4 वॉल्स की बात करेंगे तो टॉप और बॉटम हटेगा. इससे टॉप और बॉटम की बात करेंगे BH 2BH हट जाएगा, 2LB हट जाएगा आपका, तो बचेगा क्या? 2BH प्लस 2HL. तो हम लिख सकते हैं दैट इज 2BH प्लस 2HL, दैट इज 2 कॉमन, 2H कॉमन, B प्लस L, and this is the formulas of cuboid. Now next is cube. What is the difference between cube and cuboid? Diagram is same as I used in cuboid. देखो cube और cuboid में difference सिंपल सा होता है, if length, breadth and height are equal then we say the cuboid is a cube. Cuboid is a cube. तो मैं इसको नाम दे देता हूँ A. I am using A, right? Length, breadth और height को क्या नाम दे देता हूँ? A equal to A. Length कुछ भी मान सकते हैं आप. Now volume क्या होगा? भाई क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? A क्यूब कैसे हो जाएगा? आप बोलते हैं ना L into B into H. क्यूबॉइड का तो A into A into A, that is A क्यूब, cubic unit. Now next is total surface area. देखो क्यूबॉइड का थोड़ा देखो, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2LB plus BH plus HL. अब A into A square, A into A square, A into A square, because सारे A है ना आपके पास, A square 3A square into 2, that is 6A square, square unit. Now next is length of diagonal. भाई अगर आप बात करेंगे क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड में आपने डायगोनल क्या लिखा था? You have written √L square plus B square plus H square. So A square plus A square plus A square, that is √3A square. कितना हो जाएगा? √3A square, that is A √3 unit. And the last is area of 4 walls. भाई एक वॉल का एरिया A स्क्वायर है, 6 वॉल का 6A स्क्वायर है. 4 वॉल्स है
तो आपका एरिया क्या हो जाएगा 4a square unit. Now the next formula that we have is a right circular cylinder. Right? What is the first thing in right circular cylinder? Area of each end. At both ends we have circles and radiuses are. So what we can say, the area of each end is pi r square unit. Now next thing, first I will talk about curved surface area. Curved surface area क्या होता है? Circular shape. जैसे मैंने भी एक पेज का यूज किया है. Right here I have drawn, means I am having a cylinder. आप देख सकते हैं मेरे पास एक सिलेंडर है ना, सिलेंड्रिकल शेप है, ये एक सिलेंडर. अब इस सिलेंडर की बात करता हूं तो कर्व सरफेस ही नहीं है, ऑब्वियसली बात है टॉप और बॉटम मेरे ओपन है, आप मान ले सर्कल्स यहाँ पे क्लोज है. अब यहाँ पे मुझे बात करना है व्हाट विल बी द कर्व सरफेस एरिया. अब कर्व सरफेस एरिया को ध्यान से समझना, इसको मैं कट करूंगा एक कॉर्नर से, आप एक्टिविटी भी कर सकते हैं, कट करेंगे और ओपन करेंगे. सो ओपन करेंगे तो यू विल गेट अ रेक्टेंगुलर शेप. Now in this rectangle, the height is same as the height of a cylinder. What is the length? Just means look at this. We have semicircular ends. When we are opening it, this length is what circumference of the circle. This length is what circumference. देखो circumference से तो open होके length मिल रहा है. Means मैं ये बोल सकता हूँ कि जो इसका सर्कमफ्रेंस को ओपन करते हैं, जैसे रेक्टेंगल बन रहा है तो ये सर्कमफ्रेंस है एंड दिस इज द हाइट. सो व्हाट विल बी द एरिया? 2 pi r into h. 2 pi r into h, that is 2 pi r h square unit. pi r h square unit क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया इज 2 pi r h. नाउ टोटल सरफेस एरिया, भाई कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में अंतर क्या है? भाई एक सर्कल ऊपर का आ जाता है और एक सर्कल नीचे का आ जाता है. Means we can say CSA plus area of two circles. So CSA is 2 pi RH plus 2 pi R square. What we can say? We can take 2 pi R common, H plus R square unit. कई बार बोलता है, देखो ऐसे ही याद करना अच्छा होता है दो पार्ट में ब्रेक करके. कई बार बोलता है ओपन टैंक के. अब अपने घरों में देखते हैं टैंक होता है, ओपन होता है, तो ऊपर साइड सर्कल नहीं है, तो ओपन टैंक का सरफेस एरिया क्या होगा? एक सर्कल आएगा 2 pi RH plus pi R square. तो ऐसे हम ब्रेक करके निकाल सकते हैं. द लास्ट थिंग इज वॉल्यूम. वॉल्यूम जैसा क्यूबॉइड में देखा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट मींस एरिया ऑफ बेस into height. Area of base is pi r square into h, that is pi r square h cubic unit. Now next we have a right circular hollow cylinder. right circular hollow cylinder. जैसे हमारे घरों में पाइप होता है ना, पाइप पानी डालने के लिए, उसको थोड़ा सा कट करके देखना, कुछ उसका विड्थ होता है, कुछ मोटाई होती है बोल सकते हैं. राइट, तो वो बोल सकते हैं उसमें दो रेडियस होंगी, एक तो इनर रेडियस होगी, एक आउटर रेडियस होगी. तो इनर रेडियस को मैंने स्मॉल आर लिया है, आउटर रेडियस को कैपिटल आर, हाइट इज एच. सिलेंड्रिकल ही दिखता है पर उसका कुछ विड्थ होता है ना. राइट, तो रेडियस में वेरिएशन होता है, उसे हम बोलते हैं हॉलो सिलेंडर. नाउ we'll all discuss all the four things. The first thing is area of each end. अब इसके एंड को अगर आप देखोगे ना तो आपको दिखेगा सर 2 सर्कल्स भी आर रीडिंग, और यहाँ पे तो आपको विड्थ चाहिए, तो इसमें तो मटेरियल होता है. तो दिस इज, ये ऊपर इतना वाइड दिख रहा है, दिस इज स्मॉल आर, दिस इज कैपिटल आर. तो एरिया क्या होगा? एरिया तो सिर्फ इतना ही कवर कर रहा है जितना मैंने शेड किया है. इज बिगर सर्कल माइनस स्मॉलर सर्कल. पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट. नेक्स्ट थिंग इज कर्व सरफेस एरिया. अब कर्व सरफेस एरिया में क्या अंतर आएगा, ध्यान से देखो भाई. इसको आप देखोगे इनर सर्कल, अभी हमने देखा ना 2 pi r h होता है, पर 2 pi r h दो के लिए होगा, एक इनर साइड के लिए, एक आउटर साइड के लिए. सो वी कैन से 2 pi स्मॉल r h plus 2 pi कैपिटल R h. सो 2 pi कॉमन, h भी कॉमन, स्मॉल r प्लस कैपिटल R स्क्वायर यूनिट. टोटल सरफेस एरिया में, कर्व सरफेस एरिया में दो सर्कुलर एंड और ऐड हो जाएंगे. मींस इसको हम देखेंगे, बोलेंगे CSA प्लस एरिया ऑफ बोथ एंड. सो CSA क्या है? 2 pi h
स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस एक एंड का एरिया ये है तो दो एंड का क्या होगा 2 टाइम्स पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ऑब्वियसली ये भी क्या होगा स्क्वायर यूनिट। एंड द लास्ट थिंग वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होगा, मैंने बोला था बेस का एरिया इनटू हाइट। व्हाट इज द एरिया ऑफ द बेस, बेस है ना, हाइट क्या होगा, सो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, so that is equal to pi capital R square minus small r square into height is h, and this is cubic unit. Now next thing that we are having is right circular cone. Here the base radius is small r and height is h, and one more thing is there, this is slant height, and is what, slant height. Now one thing should be clear, means that is very important, is making a right angle triangle. Right angle triangle है तो we can say hypotenuse square equal to perpendicular square, that is h, and base square is r. So the first thing that we should know, L square equal to h square plus r square. This is very important condition. Means any two thing is given, we can find the third. What is curved surface area? In this cone or in every right circular cone we have a circle and the curved surface. अब कर्व सरफेस की बात करते हैं, सर्कल तो हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये कर्व सरफेस की बात करें तो कर्व सरफेस होता है बेटा पाई आर एल, है ना, इसके डेरिवेशन के लिए हम अलग से जा सकते हैं, पाई आर एल स्क्वायर यूनिट, एल यू ऑलरेडी नो, स्लैंट हाइट। व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया, सीएसए प्लस सर्कल, एरिया ऑफ बेस, दिस इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, मींस वी कैन टेक पाई आर कॉमन, आर प्लस L. लास्ट इज वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट। वन थिंग कैन कम इन योर माइंड, सर हर बार आप बोलते थे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट तब होता है जब बेस जो होता है वो सेम तरीके से बढ़ता है, जितना बेस है वैसा की वैसा एक के ऊपर एक रखते जाते बढ़ता है। अब देखो बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर है तो बेस के ऊपर जो रिंग आ रही है उसका रेडियस सेम होगा या कम होता जा रहा है ना, तो यहाँ पे वैसा नहीं कर सकते। दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर h। नाउ नेक्स्ट इज वी हैव स्फीयर, है ना, स्फीयर में सिर्फ एक चीज मालूम होती है हमें, रेडियस। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूबिक यूनिट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सरफेस एरिया, इट इज अज्यूम्ड, और ऐसा एक्सपेरिमेंट करके पता चला है कि जो सरफेस एरिया दैट कवर्स 4 सर्कल्स मींस 4 पाई आर स्क्वायर यूनिट, राइट। अब एक चीज और आती है इसमें, हमें आता है हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर में क्या होता है भाई, हमारा जो स्फीयर है वो हाफ हो जाता है, सिंपल सी बात। अब अगर हमें इसका डायमेंशंस निकालने हैं तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा, 4/3 का क्या हो जाएगा 2/3। सरफेस एरिया में हमें लिखना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया। भाई एक तो आपका कर्व हो गया और एक हो गया बेस, राइट, या टॉप बोल दो आप, तो हम बोल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया हाफ हो गया, बिकॉज टोटल जो आउटर पार्ट है वो तो हाफ हो गया, एक पार्ट एक्स्ट्रा है, ये पार्ट एक्स्ट्रा है, तो ये टोटल में आएगा। टोटल सरफेस एरिया ये जो 2 पाई आर स्क्वायर में एक पाई आर स्क्वायर और आएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए व्हाट यू कैन डू, आप कोई भी आपका सर्कुलर शेप में, स्फेरिकल शेप में फ्रूट होगा, जैसे एप्पल है, योर स्फेरिकल नहीं होता पर वैसा ही कुछ होता है, राइट, या दूसरे भी फ्रूट है, उसे कट करके देखो, हेमिस्फीयर बनाओ, आपको दिखेगा एक सर्कुलर है और एक हेमिस्फीयर। लास्ट थिंग दैट वी हैव ए स्फेरिकल शेल, है ना। थोड़ा ये डायग्राम में मैंने इस तरीके से इसलिए बनाया 3D दिखे आपको, नहीं तो 2 सर्कल्स बना लेता बस। हियर वी हैव आउटर रेडियस, इनर रेडियस। टेनिस बॉल होता है ना, उसे कभी कट करो वो स्फेरिकल शेल होता है, कुछ उसका विड्थ होता है ना, कुछ मटेरियल यूज होता है। नाउ वी हैव आउटर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब ये तो स्फीयर है, आउटर में आउटर स्फीयर है, सरफेस एरिया अभी पढ़ा ना स्फीयर का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आउटर में कैपिटल आर रेडियस है तो दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर, इनर में स्मॉल आर है so 4 pi is small r square unit and last is volume। वॉल्यूम में हम क्या बात कर सकते हैं, वॉल्यूम में we can write 4/3 pi कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। सिंपल सी बात है, बाहर वाले स्क्वायर में से अंदर वाला माइनस कर दिया, क्यूबिक यूनिट। So I hope you like the videos, है ना।
Thank you so much.